Mahindra Sanat Kada Lucknow Festival of 2024. I am Vivek Prasad. I retired recently as Professor and Head from the University of Lucknow, and I have been asked by the organizers to introduce the program and the participants today. मैं invite करूँगा अब अपने दो panelists basically, Miss Deepa Bagai and Professor Danish Iqbal. Miss नीलाक्षी राय जी होंगी जो कि कथक वाला कंपोनेंट वो करेंगी. एक छोटी सी जरा सा एक बस इन लोगों से तारुफ करा दें आपका. Miss Deepa Bagai is the director of the NRDC, and she secured her BA and MBA degrees from the University of Lucknow and an MPhil in development economics from the Sorbonne University in Paris. She has more than 30 years of experience and substantive technical specialization in public policy, institutional strengthening and public sector reform at the international, regional, country and subnational levels, of which many years have been in the Asia-Pacific region. She has worked for the World Bank, for the United Nations Development Program, for the World Food Program, all these. और बल्कि वो कुछ और लंबा था तो अभी इन्होंने अपने सामने ही मुझसे कटवा दिया. तो लेकिन मैं कल्चर के लिए आई हूँ, बस सिर्फ इतना ही मेरे लिए कहना बहुत है कि मुझे लखनऊ आने का बहाना चाहिए और बस ज़रा सा भी बहाना मिलेगा मैं लखनऊ आ जाऊँगी, क्योंकि मैं कल्चर की शौकीन हूँ, लखनऊ की शौकीन हूँ, यहीं पैदा हुई, यहीं पढ़ी हुई. Professor Danish Iqbal Sahab is a media educator and an awarded playwright. He's a performer, teacher, researcher and cultural organizer. He has done pioneering work in storytelling and drama, combining different styles seamlessly to project the unifying thread of Indian literary traditions. Professor Iqbal is a famous theatre personality who has many well-known plays, poetry and documentaries to his credit. ये भी हालांकि इन्होंने भी कहा था कि हमारा बहुत सारा काट दीजिएगा, तो ये गरज इनका भी यही है कि कल्चरल आदमी हैं, बेसिकली कल्चर से जुड़े हुए, लखनऊ से जुड़े हुए, और शायद आज के लिए ये इनकी सबसे बड़ी पहचान है. Miss Nilakshi Rai is an accomplished Kathak dancer and choreographer and a graded artist from Doordarshan. She began her training at the age of 5 under the tutelage of Shubha Mudgal ji and then Om Prakash Mishra ji in Sangeet Samiti, Prayagraj. In New Delhi, she was a part of Uma Sharma ji's repertory for 7 years, performing in India and abroad. She now performs under the guidance of Yog Raj Pawar ji and Ved Prakash Gungani ji, both disciples of Pandit Rajendra Gangani ji. She also founded the Parangat Prayag Kala Kendra to promote performing art culture. Recently, she conceptualized, choreographed, directed and staged Amrapali, an innovative dance drama in Sanskrit. Her dances reflect a combination of the Lucknow and Jaipur gharanas. She is well adept in the aspects of the Nrit and the Bhav. She performed at the Khajuraho Dance Festival in 2017, the Taj Mahotsav as well, in addition to the Singhast, Kumbh and the Uttaradhikari festivals of Madhya Pradesh. She performed at the Prayagraj during the Kumbh also. She has revived the ancient tradition of Banaras, Gulab Padi, which she showcases every year, and Ms. Rai regularly performs on the poetry of poets through the ages. आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने का, इस शाम हम लोगों को नवाजने का. एक दरखास्त बस मैं कर दूं कि थोड़ा सा ये पैसेज क्लियर रखिएगा, क्योंकि दिस विल बी यूज्ड ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस. थैंक यू वेरी मच. वेलकम. प्लीज आगाज करें. बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोफेसर साहब. इतना कुछ कहने के बाद वो याद आता है लखनऊ के बारे में कह सकते हैं कि और क्या देखने को बाकी है, आपसे दिल लगा के देख लिया. वाह जी. तो आज की इस खूबसूरत, खुशनुमा, हल्की सी सर्द रुपहली शाम और यहाँ मौजूद तमाम ख़वातीन और हजरात को दीपा और दानिश का आदाब. जी. तो दानिश जी, आपको पता है कि लखनऊ की जो खुसूसियात हैं, यहाँ की नज़ाकत, नफासत, उसके बारे में तो जैसे दिल्ली के लिए कहते हैं कि दिल्ली जो शहर था आलम में इंतखाब, लखनऊ कोई कम नहीं रहा है. और उस नफासत, नज़ाकत,
इन सब खुसूसियात को यहाँ के शायरों ने आशिकी के अंदाज में बहुत ही खूबसूरती से उसको बरपा है। जी जी। तो इसके बारे में हम यही कहना चाहते हैं कि जैसे अमीर मीनाई का है कि इतने लखनऊ की आशिकी को मौजू बनाने के लिए इतने शायरों के नाम डॉक्टर साहब ने भी लिए, जैसे अमीर मीनाई हुए, मजाज हुए, आतिश और तमाम शायर जिन्होंने लखनऊ के मौसफ़ी, और सबसे पहले तो इनका भी नाम न लिया जाए नासिक, जी, तो भी गलत होगा जी। और नासिक का वो खूबसूरत शेर तो हम लखनऊ वालों के दिल में हमेशा रहता है, हम लेके उसको वाकई में घूमते हैं, और वो है तेरी सूरत से नहीं मिलती किसी की सूरत, हम जहाँ में तेरी सूरत से नहीं मिलती किसी की सूरत, हम जहाँ में तेरी तस्वीर लिए फिरते हैं। जी। लखनऊ के बारे में किसी और शायर ने कुछ लाइनें कही थी, बहुत छोटा सा एक शेर है, और वो है कि बाकी रही न शम्मा। हमारे साथ इस वक्त खालिद मुस्तफ़ा साहब हैं, और आप जानते हैं कि जब शेर पढ़ा जाता है तो मिसरा उठाया जाता है। आज खालिद मुस्तफ़ा सितार से उठाएंगे जय जय। ये एक नया तजर्बा होगा। तो शेर है, बाकी रही न शम्मा, बाकी रही न शम्मा, न परवाना रह गया, बाकी रही न शम्मा न परवाना रह गया, वो बुझ गई ये जल गया, अफसाना रह गया। तो देखिए, लखनऊ एक शम्मा है, एक शम्मा थी, एक शम्मा रहेगी, और लखनऊ के चाहने वाले, लखनऊ के रहने वाले, लखनऊ से मोहब्बत करने वाले लोग लखनऊ के परवाने हैं। ये परवाने थे और हमेशा रहेंगे। अगर हम तारीख पे नज़र डालें तो तकरीबन 1 सदी या 80 साल का एक ऐसा पीरियड है, यानी 18वीं सदी से 19वीं सदी के वस्त तक का, 20 तक का, जब लखनऊ पूरी दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट शहर था, और इसका मुकाबला रोम और वेनिस और टर्की, इस्तांबुल और कुस्तुनतुनिया वगैरह से किया जाता था। वो बेस्ट पीरियड था क्योंकि दिल्ली पे बहुत से अटैक्स हुए थे, दिल्ली बहुत तबाह बर्बाद हो गई थी, और दिल्ली से जितने भी अहम लोग हैं वो लखनऊ की तरफ आ रहे थे। यहाँ अमन व अमान था, यहाँ पे हुस्न था, यहाँ पे नज़ाकतें थीं, नफासतें थीं, और बेहतरीन माहौल था। नतीजे में यहाँ पे जो शेर व अदब है वो बहुत आगे गया, और बेहतरीन शायरी की गई, और लखनऊ में दिल्ली और बाकी जगह के जो भी अहम लोग थे वो सब आ गए। और अभी प्रोफेसर साहब ने और दीपा जी ने भी यहाँ के बहुत से अहम शोरा का नाम लिया। तो अगर हम जहाँ से मॉडर्न पीरियड शुरू होता है उस पर नज़र डालें तो अमीर मीनाई एक बहुत अहम शायर हैं, और जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत शायरी की, और जिसको हम लखनऊ स्कूल कहते हैं। जैसे अभी दीपा जी ने आपको शेर सुनाया कि खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, तो देखिए ये एम्पैथी का शेर है। दुनिया में कहीं पे कुछ भी गलत हो, उस पे उसकी तकलीफ़ हमें होती है। तो उनकी एक छोटी सी गज़ल है और उसके कुछ अशार हैं, वो मैं यहाँ पे आपकी इजाज़त से सुनाना चाहूँगा कुछ शेर। क्योंकि देखिए, सारे अच्छे शायरों की तरह से अमीर मीनाई की शायरी में अच्छी बात यह है कि हर शेर एक खिड़की है जिससे एक मंजर नज़र आता है, एक कहानी नज़र आती है। तो वो कहते हैं लखनऊ वालों के ख़ास अंदाज में, अच्छे ईसा हो, अच्छे ईसा हो, मरीजों का ख्याल अच्छा है। अब देखिए, इसकी कहानी ये है कि जीसस क्राइस्ट यानी कि ईसा मसीह वो ब्लेस कर देते थे, लोगों को छू लेते थे और उससे मरीज ठीक हो जाते थे। तो हम जिससे मोहब्बत करते हैं वो भी हमारे लिए मसीहा है और हम उसको देख के जीते हैं। लेकिन वो अपने मसीहा से कहते हैं, तो इसमें देखिए बैक स्टोरी में जीसस क्राइस्ट की कहानी है। तो कहते हैं अच्छे ईसा हो, अच्छे ईसा हो, मरीजों का ख्याल अच्छा है। हम मर रहे हैं, हम मरे जाते हैं, तुम कहते हो हाल अच्छा है। तो देखिए, ये लखनऊ वालों का जो खास अंदाज है, यहाँ पे अच्छा है नहीं कहेंगे, अच्छा है। हम मरे जाते हैं, तुम कहते हो हाल अच्छा है। तो इसी गजल के 3 और शेर हैं, और आपको बताइए कौन सा याद आता है वो वाला शेर इसका। जी,
तुझको मांगू मैं तुझी से। और देखिए ये सूफियाना शेर है। शेर में यहाँ पे आम इंसान से बात नहीं हो रही है, पाक परवरदिगार से बात हो रही है। और देखिए हम बहुत सी दुआएं मांगते हैं, बहुत सी चीजें मांगते हैं। वो कह रहे हैं हम तुझको मांगू मैं तुझी से कि सभी कुछ मिल जाए। तुझको मांगू मैं तुझी से कि सभी कुछ मिल जाए, 100 सवालों से यही एक सवाल अच्छा है। वाह। और आ गया उसका तसव्वुर तो पुकारा ये शौक, बहुत दिल में जम जाए इलाही ये ख्याल अच्छा है। बहुत खूब, बहुत। तो आज हम अमीर मीनाई को ही याद करने वाले हैं नीलाक्षी की मदद से, और नीलाक्षी के जो हमनवा हैं और इनकी जो हम कदम हैं और हम रक़्स हैं उनकी मदद से। तो वो गज़ल याद आती है आपको, जिसको कि मेरे ख्याल से यहाँ बैठने वाले जितने भी लोग हैं कोई भूल नहीं सके होंगे। हर एक के जहन में कभी न कभी वो गज़ल आई ही होगी कि सरकती जाए है रुख से नकाब आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। और इसका जो शेर है एकदम हासिल गज़ल कि वो बेदर्दी से सर काटे हैं और मैं कहूँ उनसे हुजूर आहिस्ता आहिस्ता जनाब जनाब आहिस्ता आहिस्ता। तो चलिए आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं उस गज़ल की जानिब। जी शब फुल्कत का जागा हूँ, शब फुल्कत का जागा हूँ, फरिश्तों अब तो सोने दो, कभी फुर्सत में कर लेना हिसाब, आहिस्ता 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 आहिस्ता। धा धा तक तेन धा धा तक 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 धा
सरकती जाए है आहिस्ता आहिस्ता सरकती जाए है रुख से नका आहिस्ता आहिस्ता निकलता रहा है आफता आहिस्ता आहिस्ता सरकती जाए है रुख से नका
आहिस्ता आहिस्ता धा दिन धा ना दिन 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 धा दिन दिन ना धा दिन दिन ना ना दिन दिन धा दिन दिन ना धा कर धा दो ना का दिन धा दो ना का धा कर धा दो ना का धा का दिन धा दो ना धा ने धा के धा दो ना का धा का धा के धा दो ना का धा ने धा के धा दो ना का धा का धा के धा दो ना का धा ने धा के धा दो ना का thầy tắt ta đến thế là ta đến ta đến ta đến ta đến thế nào thầy thầy ta đến thế nào ta đến ta đến thế nào ta đến ta đến ta thầy thầy ta đến thế nào ta đến ta đến thế nào ta đến thế nào thầy thầy ta đến ta đến thế nào ta đến ta đến thế nào ta đến ta đến thế nào ta करता धो ना का ta कहते कहता तो ना ta ta करता धो ना का कहते कहता तो ना का ta ta जब होने लगे जब वो तो हमसे कर लिया पर्दा जब होने लगे जब वो तो हमसे कर लिया पर्दा हया यकलत आई शबा आहिस्ता आहिस्ता निकलता रहा है आफ्ताब आहिस्ता आहिस्ता सरकते जाए हैं रुख से न कर आहिस्ता आहिस्ता धा दिन धा ना दिन दिन ना ना दिन दिन धा दिन दिन ना धा धा दिन दिन ना तक दिन 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 वो बेदर्दी से सर काटे अमीर और मैं कहूँ उनसे वो बेदर्दी से सर काटे अमीर और मैं कहूँ उनसे हुजूर आहिस्ता आहिस्ता जनाब आहिस्ता आहिस्ता सरकती जाए है रुख से न कर आहिस्ता आहिस्ता धा दिन धा ना दिन दिन धा ना दिन दिन धा दिन दिन ना धा धान धके धकत धके धकत धके धकत धके 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 धकत धके ने कथा धके ने कथा हत्ता धके कथा धके ने धा हत्ता धके कथा धके ने धा हत्ता धके कथा धके वाह 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 तो देखिए ये है लखनऊ सरकते जाए रुख से न कर आहिस्ता आहिस्ता वाह वाह आहिस्ता वाह। आहिस्ता
आहिस्ता वाह वाह वाह। बहुत खूबसूरत। तो देखिए, आहिस्ता आहिस्ता हम उस दौर में पहुंच चुके हैं जब शास्त्रीय अंदाज की चीज़ों और ख़ास अवधी अंदाज की चीज़ों का एक मिश्रण, एक इम्तजाज उर्दू शायरी के साथ और गायकी के साथ और संगीत के साथ और पुरानी परंपराओं के साथ मिला के नई परंपराएं जोड़ने का जो काम लखनऊ ने किया, ये उसकी एक झलक, एक बानगी, एक नमूना आपने देखा। इस सिलसिले में बहुत से नाम आते हैं जिन्होंने पुरानी चीज़ों को नए अंदाज से पेश किया, और आप सभी जानते हैं कि कथक का जो फ़रोग हुआ है और कथक को जो उरूज मिला है, वो उसकी कहानी बग़ैर लखनऊ के मुकम्मल नहीं हो सकती। इसी तरह से गज़ल गायकी की जो परंपरा है, जो बिल्कुल शास्त्रीय परंपरा बन चुकी है, हालांकि वो शास्त्रीय नहीं थी, हम उसे सुगम संगीत कहते थे, लेकिन हमारे उस्तादों ने, हमारे पंडितों ने क्लासिकल म्यूज़िक का, शास्त्रीय संगीत का जितना ज़्यादा इस्तेमाल गज़लों में किया है कि अब गज़ल गायकी भी एक तरह की शास्त्रीय परंपरा ही हो चुकी है। और आपने देखा कि यहाँ पे हमारे एक पंडित जी और हमारे गुलूकार और हमारे सितार नवाज और हमारे तबला नवाज, इन्हीं ने मिल के जो जादू जगाया और उस जादू में जो रंगत नीलाक्षी और उनके साथियों ने डाली, यही लखनऊ है। जो रक्स और मौसीकी की का जो संगम है जो लखनऊ में मिलता है, वो तो शायद कहीं और, उसके साथ में आप शायरी को घोल दीजिए तो समझ लीजिए कि वो एक अजीब ही ऐसा माहौल बन जाता है कि वो दुनिया में कहीं आपको ढूंढे नहीं मिलेगा। तो अमीर मीनाई के बाद के दौर में बहुत से बड़े बड़े शायरों ने यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे काम किए, लेकिन इस वक्त हमें याद आते हैं मौलाना हसरत मोहानी। और मौलाना पे मैं ख़ास तौर से ज़ोर दे रहा हूँ। मौलाना का मतलब कि वो एक बहुत ज़्यादा आर्थोडॉक्स और ट्रेडिशनल माहौल से आते हैं। मौलाना हैं, आलिम हैं, शायर हैं, फ्रीडम फाइटर हैं, बेहतरीन इंसान हैं, बेहतरीन जर्नलिस्ट हैं, और जेल में रहते हैं। और वहाँ पे वो इस बात की दरख्वास्त नहीं देते कि मैं पॉलिटिकल प्रिजनर हूँ, मुझे कोई स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाए। तो उनका बहुत मशहूर शेर है कि है मश्क सुखन जारी, चक्की की मशक्क़त भी, एक तुर्फ़ तमाशा है हसरत की तबीयत भी। हसरत मोहानी अवध के एक बेहतरीन चश्मो चिराग, और जो उन्होंने, जो उनका कंट्रीब्यूशन है शायरी में, हमारी सियासत में, हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में, उसका तो जवाब ही नहीं है। वैसे दानिश बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि हसरत मोहानी के लिए अगर ये कहा जाए कि एक बेहतरीन शायर, जैसा आपने कहा बेहतरीन इंसान, सियासतदान अलबत्ता बहुत कुछ हद तक नाकाम, जिसने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भाग लिया, जिसने कि अपनी शोहरत पार्लियामेंट तक पहुंचाई, लेकिन बिना स्त्री का कुर्ता पहन के इक्के पे चलने वाले जागीरदार खानदान से उनका वास्ता, लेकिन फिर भी एक बहुत ही सादा तरीके से जीते। और वही हसरत मोहानी है जिन्होंने एक तरफ ये नारा दिया, इनकलाब जिंदाबाद। आप यकीन नहीं करेंगे कि वही हसरत मोहानी इनकलाब जिंदाबाद एक तरफ कहते हैं, और दूसरी तरफ वो इश्क और इश्क मजाजी और इश्क हकीकी दोनों में ही इतनी खूबसूरती से बात करते हैं। जन्माष्टमी पे वो मथुरा में हाजिरी देते हैं। उनका एक इतना प्यारा शेर है कि हसरत की भी कबूल हो, हसरत की भी कबूल हो, मथुरा की हाजिरी, सुनते हैं आशिकों पे तुम्हारा करम है खास। ये कृष्ण जी के लिए कहते हैं हसरत मोहानी। देखिए, ये है हम लोग की जो असली गंगा जमनी, जो हम जिसको बात कहते हैं, और लखनऊ उसकी उस रवायत का जितना खूबसूरत नमूना है वो दुनिया में कहीं नहीं है। तो हम लोग तो सब, जैसा हम कहते हैं कि जब लखनऊ पहुंचते हैं और चारबाग पे वो दिखता है लिखा हुआ मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं, तो यकीनन मुस्कुराहट आ जाती है चेहरे पे। जी जी जी। और हसरत मोहानी को हम लोग याद कर रहे हैं, उस लखनऊ को याद कर रहे हैं। मैंने अर्ज़ किया कि वो मौलाना थे, फ्रीडम फाइटर थे, और आपने बताया कि वो जब चाहते थे उठ के चले जाते थे, वृंदावन चले जाते थे, मथुरा चले जाते थे। अच्छा, मार्क्सिस्ट थिंकिंग के आदमी थे, उसके बावजूद मौलाना थे।
फ्रीडम फाइटर थे और उस ज़माने के प्रधानमंत्री ने उनसे कहा कि ये क्या है, आप जाके धर्मशाला में रहते हैं, अब आप एमपी हैं तो आपका फंड है, आपके लिए पैसे हैं, आपके लिए बेहतरीन चीज़ें मौजूद हैं, आप उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं? उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये किसानों के लगान का पैसा है, ये मुझे नहीं इस्तेमाल करना। तो खैर ये बातें जारी रहेंगी। एक उनकी बहुत मशहूर गज़ल है जो आप सबकी पसंदीदा गज़ल है, जो आलमोस्ट बायोग्राफिकल है और इतना उसे सुन के इतना अच्छा लगता है कि उसके सारे शेर उनके जो उनका लड़कपन था, नौजवानी थी, उसके बहुत से मंजर हमको दिखाते हैं। और वो है चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, हमको अब तक आशिकी का वो ज़माना याद है। और आप सोचिए कि मौलाना हसरत मोहानी ये गज़ल लिख रहे हैं एक तरफ और इनकलाब जिंदाबाद का नारा दे रहे हैं दूसरी तरफ, और इसका कि और दुपट्टे के कोने से तेरा वो क्या ज़माना याद नहीं, है, खींच लेना वो मेरा, हाँ, जी, खींच लेना वो मेरा, मिसरा उठाइए। दफतन जी जी बहुत खूब। जी। तो चलिए हम चलते हैं उसी गज़ल की जानिब, उस मशहूर गज़ल की जानिब जो उस दौर की याद दिलाती है। चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, हमको अब तक आशिकी का वो ज़माना याद है। जब सिवा मेरे तुम्हारा कोई दीवाना न था, सच कहो तुम के वो कारखाना याद है। चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, हमको अब तक आशिकी का वो ज़माना याद है, चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। गैर की नजरों से बच कर सबकी मर्जी के खिलाफ, गैर की नजरों से बच कर सबकी मर्जी के खिलाफ, गैर की नजरों से बच कर सबकी मर्जी के
मिला वो तेरा चोरी छुपी रातों को आना याद है हमको अब तक आशिकी का वो जमाना याद है चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है चोरी चोरी हमसे तुम आकर मिले जिस जगह चोरी चोरी हमसे तुम आकर मिले थे जिस जगह मुद्दतें गुजरी पर अब तक वो ठिकाना याद है मुद्दतें गुजरी पर अब तक वो ठिकाना याद है हमको अब तक आशिकी का वो जमाना याद है चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है आंसू बहाना याद है आंसू बहाना याद वाह वाह बहुत खूब। वाह 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 बहुत शुक्रिया जी जी। तो आइए चलते हैं अब नए दौर की जानिब, यानी वो तीन नाम हम याद हैं हम सबको, यानी अभी बात हो रही थी फैज़, साहिर और मजाज। फैज़ ने जो लाहौर और अमृतसर वाला इलाका है पंजाब, उस पर कब्ज़ा कर रखा था। साहिर लुधियानवी की तूती बम्बई में बोल रही थी आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद। लेकिन बाकी हिंदुस्तान में जिसका नाम था और लखनऊ में जिसका नाम था और मकाम था, वो नाम है मजाज। मजाज के बगैर मजाज वाकई में लखनऊ की कहानी मुकम्मल नहीं हो सकती। और लखनऊ जी नहीं, वाकई में आप जैसा फरमा रहे थे जी कि वो एक ज़माना ऐसा दौर था कि एक तरफ फैज़ का मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, और दूसरी तरफ साहिर का ताजमहल। लेकिन उन सब को पीछे छोड़ते हुए जो उस वक्त में मजाज ने लिख दिया, वो ऐसा था कि वो और भी ज़्यादा जी जी और भी ऐसे उरूज पे पहुंची। देखिए, आज़ादी से पहले की जो एंजाइटी थी, जो एंशियसनेस थी, ऐ गमे दिल क्या करूं, ऐ वहशते दिल क्या करूं, ये रुपहली छाँव, जी ये आकाश पर तारों का जाल, जी ये रुपहली छाँव, ये आकाश पर तारों का जाल, जैसे सूफी का तसव्वुर, जैसे आशिक का ख्याल। वाह वाह वाह, जैसे सूफी का तसव्वुर। आह जी। लेकिन कौन जाने, आह लेकिन कौन जाने, कौन समझे जी का हाल, ऐ ऐ गमे दिल क्या करूं, ऐ वहशते दिल क्या करूं। मतलब उस वक्त पे ऐसी शायरी मजाज ने करी, वही जो इतने खूबसूरत लफ्ज़ और इतने गुल और बुलबुल को इस तरह से पेश किया कि इतना नयापन था उनकी शायरी में
लोग बताते हैं, इस्मत चुगताई के बकौल कहते हैं वो कि लड़कियां उस जमाने में उनके नाम के पर्चे निकालती थी और उनका जो पोइट्री का कलेक्शन था आहंग, उसको सीने से लगा के सोती थी। वाह। ये था मजाज का उस वक्त जो जलवा था, और जिस तरह से मजाज दिलो दिमाग पे छा गए थे। उनकी जिंदगी बहुत छोटी सी रही, मुख्तलिफ, लेकिन आंधी की तरह वो आए, और यकीनन आंधियां बहुत देर तक नहीं ठहरती हैं। जी जी जी। लखनऊ पे उनकी एक मशहूर नज़्म है, फिरदौस से हुस्न इश्क है दामान लखनऊ, आंखों में बस रहे हैं गजालान लखनऊ। वाह। जब भी लखनऊ की बात होगी, लखनऊ की शायरी की बात होगी, मैं समझता हूँ इस गज़ल को, इस नज़्म को, जो कि मौज़ूआती गज़ल है, इसको हमेशा याद किया जाएगा। वो कहते हैं कि एक नौबहार नाज को ताके है फिर निगाह, क्या वो बात है। नौबहार नाज के है जाने लखनऊ। तो लखनऊ की जान मजाज, और मजाज की जो बेहतरीन शायरी है, उसमें से एक हीरा, एक मोती लेके नीलाक्षी आपके सामने। जी जी। और इससे मजाज से पहले हम लोग याद करना चाहेंगे एक और बड़ी फनकार, जिनके बगैर लखनऊ की कहानी, लखनऊ की तारीख़, लखनऊ की तहज़ीब मुकम्मल नहीं हो सकती है। और जैसे कि हमारे वाजिद अली शाह यहाँ से कलकत्ता गए, तो उनको भी यहाँ से कलकत्ता जाना पड़ा, और कुछ ख़ानदानी दुश्मनियों की वजह से उनको यहाँ से गया जाना पड़ा, गया से कलकत्ता जाना पड़ा, और कलकत्ता में उनको उरूज मिला। उन्होंने वहाँ पे अपनी कलाकारी की, अपने फ़न की, अपनी मौसीकी की शुरुआत की, बहुत ऊंचाइयों को छुआ, और उसके बाद आज़ादी के फ़ौरन बाद वो वापस यहाँ पे आईं, और उसके बाद क्लासिकल म्यूज़िक के साथ साथ अवधी अंदाज की चीज़ों का उन्होंने एक मिश्रण तैयार किया। और उनकी ज़िंदगी का और उनकी शायरी के दो दौर हम कह सकते हैं, एक उनका क्लासिकी दौर और एक अवधी दौर। हम लोग बात कर रहे हैं बेगम अख्तर की। बेगम अख्तर के बगैर इस शहर की कहानी, गज़ल गायकी की कहानी मुकम्मल नहीं हो सकती। और जिस तरह से उन्होंने अपनी ठुमरियों में, अपने दादरों में उर्दू शायरी का इस्तेमाल किया, आज उसी से इंस्पिरेशन लेके हमारी हर कंपोजिशन में आप देखेंगे कि जो कथक का अंदाज़ होता है और जो कथक का मिश्रण होता है, वो हम लोगों ने गज़लों में और आज की पेशकश में जगह जगह शामिल किया। वैसे आप ठीक कह रहे हैं, जो बेगम अख्तर ने दादरे में शायरी जिस तरह से उन्होंने जोड़ी, कुछ अपनी कुछ औरों की, और बेगम अख्तर के लिए तो कहा जाता है कि उन्होंने बहुत से शायरों को शायर बना दिया। जी। देखिए, वो बहुत मशहूर किस्सा है कि जब शकील बदायूनी अपनी एक गज़ल लेके आए, उस वक्त ये दौर था कि बेगम अख्तर ने अगर किसी शायर की गज़ल गा दी तो समझ लीजिए वो शायर बन गया। इस तरह वो आए अपनी गज़ल लेकर के, वो ट्रेन में जा रही थी और उन्होंने एक पर्चा दे दिया कि बेगम साहब मौका लगे तो देख लीजिएगा। और ट्रेन चली, सफ़र हुआ शुरू। उसके बाद बेगम साहब ने कहा ज़रा पेटी निकालो देखें, वो लड़का कुछ दे गया था, और उन्होंने वो बजाई, और आज की तारीख में वो गज़ल, ए मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया। तो बेगम अख्तर की कहानी और लखनऊ की कहानी तो एक बहुत खूबसूरत और मिली जुली कहानी है, और आज उसी कहानी को यहाँ पर आपके सामने उसको आगे बढ़ाते हुए हमारे आर्टिस्ट आपको सुनाएंगे और आपको दिखाएंगे। और बेगम अख्तर को याद न करना ऐसे मौके पर तो मेरे ख्याल से ज़्यादती होगी। जी जी। था तक तिन था
क्या मजा बार बार मिलता है, क्या मजा बार बार मिलता है। अजी उनकी हमसे रूठ जाने रूठने में लगेगी 2 घड़ियां, उम्र कट जाएगी मनाने में। हमरी अटरिया पे आजा रे सांवरिया, देखा देखी बलम हुई जाए। हमरी अटरिया पे आजा रे सांवरिया, देखा देखी बलम हुई जाए। नैन मिल जाए है, नैन मिल जाए है, नजर मिल जाए, सारा झगड़ा खत्म हुई जाए। हमरी अटरिया पे आजा रे सांवरिया, देखा देखी तनिक हुई जाए। हमरी अटरिया धा दिन धा धा दिन धा धा दिन धा दिग 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 धा दिन धा धा दिन धा धा दिन धा दिग 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 धा दिन धा धा दिन धा धा दिन दिग दिग धा 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 दिन धा धा दिग दिग धा दिग धा दिन धा धा दिन धा दिग 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 धा दिन धा धा दिन दिग 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 तसब्बुर में चले आते हो, तसब्बुर में चले आते हो। कुछ बातें भी होती हैं, शबे फुल्कत भी होती है, मुलाकातें भी होती है। हमरी हटरिया पे आजा रे सांवरिया, देखा देखी बलम हुई जाए।
अटरिया पे प्रेम की भिक्षा, प्रेम की भिक्षा मांगे भिखारन, प्रेम की भिक्षा मांगे भिखारन, लाज हमारी रखियो सजन, आओ सजन तुम, आओ सजन तुम, हमरे द्वारे सारा झगड़ा खत्म हुई जाए, हमरी अटरिया पे आवो रे सांवरिया, देखा देखी बलम हुई जाए, हमरी अटरिया पे तुम्हारी याद आंसू बन के आई है, चश्मे वीरान में, तुम्हारी याद आंसू बन के आई है, चश्मे वीरान में, जह किस्मत की वीरानों में बरसात भी होती है, हमरी अटरिया पे आवो रे सांवरिया, देखा देखी बलम हुई जाए, हमरी अटरिया पे आवो रे सजन, देखा देखी बलम हुई जाए। हमरी अटरिया पे आवो रे सांवरिया, देखा देखी बलम हुई जाए। तो लखनऊ की जो तहजीब है, जो उसका हुस्न है, जो उसकी खूबसूरती है, उसकी देखा देखी जारी है। और अभी हम लोग बात कर रहे थे कि जब भी लखनऊ की बात होगी, लखनऊ की तहजीब की बात होगी, नफासत की बात होगी, नज़ाकत की बात होगी, तो बहुत सारे फ़नकारों के साथ हमको नौशाद साहब को भी याद करना होगा, इसमें कोई शक नहीं। तलत महमूद को भी याद करना होगा, मदन मोहन को भी याद करना होगा, जिन्होंने इस शहर की जो मौसीकी है और इसकी जो तहजीब है उसको बाकी दुनिया तक पहुंचाने का बहुत अहम काम किया। और आमतौर से लोग ये समझते हैं कि शकील बदायूनी, उनके नाम में बदायूनी लगा हुआ था,
तो ज़रूर बदायूं से कुछ हो रहा होगा मामला। लेकिन मैं समझता हूँ कि शकील बदायूनी की जो भी उनका कंट्रीब्यूशन है वो नौशाद साहब की वजह से बहुत ज़बरदस्त। उसमें लखनऊ का जो एक अंदाज आ गया है। जैसे आप याद कीजिए, नैन लड़ जाइए तो मनवा मैं कस कोई बेकरी। अब ये वेस्टर्न यूपी वाला कैसे लिख सकता है? ये तो एक लखनऊ का तो ये तो लखनऊ की बात थी। तो जी, बिल्कुल। मैं समझता हूँ नौशाद साहब की सोबत में शकील बदायूनी जो है वो शकील लखनवी हो चले थे। बिल्कुल 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 जी नहीं, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए देखिए, जो मजा जिस वक्त पे बेगम अख्तर जी। ये बदल रही थी मौसीकी के अंदाज, उसी वक्त में मजाज भी शायरी में एक कितनी नई बातें कह रहे थे। जो एक औरत का हुस्न और इश्क के साथ जो रिश्ता होता है वो एक तरफ, और मजाज कहते हैं तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तू इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। तो इस तरह की बात, जो एक नयापन जो मजाज लेके आए अपनी शायरी में, और उसकी ज़मीन पे कितने खूबसूरत और गज़लें लिखी गई, गाने लिखे गए। छलके तेरी आंखों से शराब और ज़्यादा। तो ये जो है इसकी ज़मीन वहीं से ली गई, उनकी गज़ल से ली गई। और मजाज ने बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया बहुत से ऐसे शायरों को जो फिल्मों के लिए लिख रहे थे, जो ज़्यादा पॉपुलर मीडिया के लिए लिख रहे थे, लेकिन उन्होंने अपनी अदबियत और अपना जो एक्सक्लूसिविटी थी उसको मेंटेन किया। और बहुत से लोगों ने उनसे फरमाइशें की कि आप लिखिए। जैसे जिगर से फरमाइशें की जाती थी, ऐसे ही मजाज से की जाती थी। लेकिन उनकी बोहेमियन एक अंदाज़ था और उन्होंने उस पर कभी तवज्जो नहीं दी। लेकिन उनकी शायरी से इंस्पायर होके बहुत सारे कंपोजिशंस आए। तो चलिए, हम लोग इससे पहले भी बात कर रहे थे कि क्यों ना उन्हें याद करें, मजाज को याद करें, मजाज के एक मास्टरपीस कंपोजिशन की मदद से, एक गज़ल की मदद से, जो नीलाक्षी और उनके साथी आपकी खिदमत में पेश करने वाले, और जिसमें कि आशिकी का इतना एक खूबसूरत अंदाज उसमें पेश किया गया है कि आप सब उसका लुत्फ उठाएं। पेश खिदमत। बर्बाद तमन्ना पे इता और ज़्यादा, बर्बाद तमन्ना इता और ज़्यादा, हाँ मेरी मोहब्बत का जवाब और ज़्यादा, हाँ मेरी मोहब्बत का जवाब और ज़्यादा।
भी इश्क के मैं ख्वाब और ज़्यादा देखूंगा अभी इश्क के मैं ख्वाब और ज़्यादा बर्बाद मोहब्बत का जवाब और ज़्यादा टपकेगा लहू और मेरे दीदारे तर से टपकेगा लहू और मेरे दीदारे तर से धड़केगा दिल है खानाए खरा और ज़्यादा धड़केगा दिल है खानाए खरा और ज़्यादा बर्बाद तमन्ना है होगी मेरी बातों से उन्हें और भी हैरत होगी मेरी बातों से उन्हें और भी हैरत होगी मेरी बातों से उन्हें और भी हैरत आएगा उन्हें मुझसे जा और ज़्यादा आएगा उन्हें मुझसे जा और ज़्यादा हाँ मेरी मोहब्बत का जवाब और ज़्यादा बर्बाद तमन्ना पे होता और ज़्यादा हाँ मेरी मोहब्बत का जवाब और ज़्यादा जवाब और ज़्यादा जवाब और ज़्यादा बर्बादे तमन्ना पे इताब और ज़्यादा। तो याद आते हैं एक और बर्बादे तमन्ना जिन पे कुछ ऐसा इताब हुआ, कुछ ऐसा जुल्म हुआ जो लखनऊ की तहजीब, इसके अदब, इसके संगीत में पूरी तरह से रच बस गया। बल्कि हमें जहाँ से शुरुआत करनी चाहिए वही फनकार हमारे आज के शो स्टॉपर हैं। बिल्कुल। यानी हम बात कर रहे हैं वाजिद अली शाह। और जिनके जिक्र के बिना जी जी कोई भी इस तरह की महफिल पूरी हो मुकम्मल नहीं हो सकती, मुकम्मल शुरू नहीं हो सकती, ख़त्म नहीं हो सकती, जारी नहीं रह सकती। और आप देखिए कि उनकी पूरी कहानी शायरी की कहानी है, संगीत की कहानी है। जब भी उन्हें याद किया जाता है तो बहुत सारी शायरी आती है कि जब वो यहाँ से चले तो उन्होंने कहा, खुश रहो अहले वतन, हम तो सफ़र करते हैं।
और उसके साथ साथ कितनी सारी फोकलोर है कि बाबुल मेरा नैहर छूटा छूट हो जाए। एक जाए। से एक जो उनकी ठुमरियां हैं, उन्होंने कथक के लिए जो किया, और सबसे बड़ी बात कि यहाँ का पूरा एक अदबी कारवां, तहजीबी कारवां, एक सांस्कृतिक विरासत जो उनके साथ यहाँ पली बढ़ी, और जब वो कलकत्ता गए, बल्कि भेजे गए, मजबूर किए गए, उनके पीछे पीछे यहाँ के सारे कलाकार भी वहाँ जा पहुँचे। और यूँ देखा जाए तो अंग्रेज़ों की एक कोशिश थी कि यहाँ की जो सांस्कृतिक विरासत है उसको ख़राब कर दिया जाए, उसको उसको तहोबाला ख़त्म कर दिया जाए, उसको डिस्टर्ब कर दिया जाए। लेकिन मैं समझता हूँ कि उससे एक तरह का फ़ायदा हुआ कि जो लखनऊ की तहज़ीब थी वो यहाँ से बिहार होते हुए बंगाल तक पहुँच गई और पूरे नॉर्थ इंडिया में वहाँ से फैल गई, क्योंकि कलकत्ता उस ज़माने में सबसे अहम शहर था और वो राजधानी थी अंग्रेज़ों की, जहाँ पे पूरे हिंदुस्तान के लोग आते थे। तो जो अवध के आर्टिस्ट थे, ये जो हमारी पूरी ट्रेडिशन है वो बंगाल की ट्रेडिशन बन गई, वो पंजाब की ट्रेडिशन बन गई। उससे पहले इतना ज़्यादा इंट्रैक्शन नहीं था। और आप देखिए लखनऊ की खुशबू कलकत्ते में रच बस गई। और वाजिद अली शाह ने तो वहाँ पर यही कहा कि आए न मेरे पास तो मैं आप ही चलूं, आए न मेरे पास तो मैं तो आप ही चलूं, मुझको खुदा करे, कभी मुझको बुलवाए, खुदा करे, कहीं कभी बुलवाए बुलवाए लखनऊ। जी। तो बस हम लोग जो लखनऊ से बाहर रहते हैं, खास तौर से हम लोग की तो यही ख्वाहिश रहती है कि मुझको खुदा करे, कभी बुलवाए बुलवाए लखनऊ। तो चलिए चलते चलते एक बार वाजिद अली शाह और उनकी उस रवायत, उस ट्रेडिशन को याद करते हैं एक बहुत ही मुनफरिद पेशकश के ज़रिए। ओवर टू नीलाक्षी और उनके हमनवा। जी। तड़प तड़प सगरी रैन गुजारी, कौन देश गयो सावरिया, हो भर आई अखिया मतवारी, तड़प तड़प गई चुनरिया हमारी, तुम्हारे घोड़न मेरे द्वारे से जो निकसे, सुध भूल गई मैं बाबरिया, तड़प तड़प सगरी रैन गुजारी, कौन देश गयो सावरिया। तने ताकत है ना, करे ताती ताकत है, ताकत है ना, ताती ताकत है ना, करता ता ताकत ताकत है, ताकत है, ता
Dim dim danana dim dim danana dirnam dirnam kadar dan dim dim danana dim dim danana dirnam dirnam kadar dan dan dum da tana dirna tana dirna tana dirna na dim dim danana dim dim danana dirnam dirnam kadar dan dim dim danana dim danana dirnam dirnam gamadani sa मोहब्बत से बंदा बना लीजिएगा बता दीजिए क्या खुदा लीजिएगा अगर खोटी उल्फत से है तुमको धोखा कसौटी पर उसको चढ़ा दीजिएगा दो
dīm dīm tanana dīm dīm tanana dere na tadare dani dīm dīm tanana dīm dīm tanana dere na tadare tadare na yalali yalali yalalum tadare takran dum girda ke kadi dīm tana dere na takran dum girda ke kadi dīm tana dere dagir tak dum girda ke kadi tana da tana da tana da dagir tak dum girda ke kadi tana da tana da tana da dagir tak dum girda ke kadi tana da tana da tana dim dim tana dim dim tana dere na tadare dani dim dim tana dim dim tana dere na ga madani sa किसी और से फिर न कीजिएगा उल्फत ये कीमत है पहले चुका लीजिएगा खफा कीजिए अब ना अख्तर को साहब ये दिल लीजिए और क्या लीजिएगा Dim dim tanana, dim dim tanana, derna, derna, tadare. वाह 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 वाह। बहुत तो ये थे हमारे वाजिद अली शाह, और इस पेशकश की एनर्जी, इसकी तवानाई, इसके हुस्न को देख के आप समझ सकते हैं कि हमारा लखनऊ और वाजिद अली शाह का लखनऊ क्या आलम हुआ करता था, क्या दिलकशी उसकी हुआ करती थी, क्या हुस्न हुआ करता था, क्या खूबसूरती हुआ करती थी, और क्यों लखनऊ उस ज़माने में दुनिया का सबसे अहम शहर था। बिल्कुल। और आप देख लीजिए जो आखिरी लाइन थी वो ये थी कि दिल लीजिए और क्या लीजिएगा, मोहब्बत से बंदा बना लीजिए, मोहब्बत से बंदा बना बना लीजिएगा। और इसी में गिलोरी रकीबों ने भेजी है साहब, किसी और को भी खिला लीजिएगा। तो जी। इसके साथ ही बस हम दिल देने के साथ साथ बस आप लोग से यही कहना चाहते हैं कि आप बहुत ही खूबसूरत ऑडियंस थे, आपने इस शाम को इतना खूबसूरत बनाया। और बस कैसी अजीब शर्त है दीदार के लिए, कैसी अजीब शर्त है दीदार के लिए, आंखें जो बंद हों तो वो जलवा दिखाई दे।
आंखें जो बंद हों तो वो जलवा दिखाई दे। वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। तो बहुत शुक्रिया, नवाजिश करम, मेहरबानी, इनायत आपकी कि आपने इतने सब्र के साथ, सुकून के साथ हमारी इस शास्त्रीय पेशकश को पसंद किया। आज के ज़माने में संगीत का टेस्ट बदल गया है, अंदाज़ बदल गया है, पेशकश का अंदाज़ बदल गया है, और ये पेशकश काफ़ी मेहनत से, काफ़ी रिसर्च के बाद नीलाक्षी ने और दीपा जी ने रिसर्च करने के बाद और इसे तैयार दानिश ने। किया। जी 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 जी, हम भी यहाँ पे पहले आप। नमक की तरह मौजूद थे। जी, तो ओवर टू नीलाक्षी। Namaskar. I hope all of you liked the presentation today. So a small introduction जो हमारे साथ artists जिन्होंने इतनी खूबसूरती से हमारा साथ दिया है। खालिद मुस्तफ़ा साहब हैं सितार पे, विजय परिहार जी हैं गायन पे, अखिलेश भट्ट जी हैं तबले पे, योगराज पवार जी हैं पढ़ंत पे। ये सब आर्टिस्ट अपने आप में बहुत ही अकम्पलिश्ड और बहुत ही दिग्गज कलाकार हैं। आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल कि इन्होंने आके आज इस स्टेज की शोभा बढ़ाई है। एंड थैंक यू सो मच दीपा जी एंड दानिश जी, आप लोग का सपोर्ट हमेशा मेरे साथ रहा है और हम लोग इसी तरह अच्छे अच्छे प्रोडक्शन करते रहें, आगे यही हमारी कामना है। थैंक यू। उम्दा परफॉर्मेंस आप लोगों ने पेश किया और बहुत सारा थैंक यू आपने खुद ही बोल दिया, लेकिन फिर भी महिंद्रा सनत कदा लखनऊ फेस्टिवल की तरफ से दानिश जी, दीपा जी, नीलाक्षी जी और उनके सारे टीम को तहे दिल से शुक्रिया। और बहुत ही बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में जिस तरह से गंगा जमनी तहज़ीब को पेश किया हमारे सामने और लखनऊ की जो शिद्दत भरी आशिकी है उसको हमारे सामने एकदम दिल से रखा। तो मेरे ख्याल से बहुत ही आप लोग भी, मैं तो बहुत डूब गई थी, मेरे पास शब्द नहीं थे, लेकिन फिर भी एक फॉर्मेलिटी तो अदा करना ही है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया। और जो भी यहाँ पर हाज़रीन मौजूद हैं उनको भी बहुत शुक्रिया, इतने सब्र के साथ, इतनी शिद्दत के साथ, इतनी मोहब्बत के साथ यहाँ पर आप हाजिर रहें। इतना डिले होने के बावजूद, बहुत देरी हुई उसके बाद भी आप एकदम थमे रहें, क्योंकि आपको भी आशिकी है हमारे फेस्टिवल से। तो उम्मीद है कि कल इसी जोश खरोश के साथ हम फिर 11 बजे मिलेंगे। क्राफ्ट बाज़ार खुल जाएगा सुबह, और दिन भर आप लोग प्रोग्राम का कैलेंडर देख लीजिएगा, लगातार कार्यक्रम चलता रहेगा। और उम्मीद है कि इसी मोहब्बत के साथ कल फिर हम हाजिर होंगे। थैंक यू, थैंक यू।